Welcome to Mashwara 20.22.2 22.0 Zero so episode. आज हम लोग 22वें एपिसोड में हैं and this is a live consultation. ठीक है, this is a live consultation for people with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. मशवरा के इस 22वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का माध्यम है। आई वेलकम ऑल आवर गेस्ट एंड ऑडियंस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आई केयर फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी PIDD। आज हम बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए आंखों की देखभाल कैसे करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। Many persons with intellectual and developmental disabilities would benefit from the glass, help them to perform activity of daily life. कई बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन की गतिविधि करने में मदद करने के लिए चश्मा पहनने से भी लाभ हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। And it is a statutory requirement under the Rights of Person with Disability Act 2016. The appropriate government and local authorities shall take the measure and make scheme or program to promote health care and prevent the occurrence of disability, and for the said purpose that any government or anybody any authorities shall undertake the survey, investigation, research concerning the cause of occurrence of disability, promote various methods of preventing disabilities, screen all children at least once in a year for the purpose of identifying at-risk cases, provide facilities for training to the staff at primary and healthcare worker। अगर हम दिव्यांगजनों के अधिकार के अधिनियम 2016 को 2016 को माने तो एक वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सरकार और स्थानीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सारे उपाय, योजना या कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, जिसमें दिव्यांगता के विषय में सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान किए जाने चाहिए। दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के उद्देश्य से वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों का स्क्रीनिंग होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। The Mashwara 22.0 episode is bringing you an opportunity to talk on eye care for intellectual and developmental disability। हम हमारे सभी दर्शकों का, मेहमानों का स्वागत करते हैं। आपले स्वागत आहे, खैर मकदम, वडकम। आप जहां से जुड़े हैं, आपके हर भाषा में आपका स्वागत है। मशवरा के 22वें अंक में आपको बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों की आंख के देखभाल के विषय के मामले में हम मशवरा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। This मशवरा consultation is live through the Zoom and Facebook for person with intellectual and developmental disabilities, their families, their caregivers and professionals during that coronavirus outbreak। यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान जूम पर और फेसबुक लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके देखभालकर्ता के लिए, पेशेवरों के लिए हम लाइव हैं। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी से है, आप सभी के लिए है और आपसे गुजारिश है कि आप मशवरा के हर श्रृंखला में ऐसे ही हमें साथ देते रहें। मशवरा सीरीज इज फॉर यू ऑल, प्लीज सर्कुलेट एंड ज्वाइन टुगेदर। वी आर डूइंग मशवरा सिंस 30th April। This is our 22nd episode for so far we have great participations, and we have participation from more than 300 cities and rural areas. We have reached up to the 300 cities. I once again welcome all and appreciate our special guests to join this Mashwara live. This episode is you bringing a very important topic, and we welcome our expert Dr. Vibhuti Bhushan। सर, आपका स्वागत है इस मशवरा के अंक में। Dr. Vibhuti Bhushan, he is a MS Ortho. He is retinal fellowship from, he has that retinal fellowship from Shankara Netralaya, Chennai. He is a director of Vishnu Netralaya, Jamshedpur.
This session will be presided by our eminent mentor, Mr. J.C. Gupta, sir. So we welcome you, sir. And we have sign language interpretation by Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और इस मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मशवरा के यह बहुत ही यह जो मशवरा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है। बौद्धिक और विकासात्मक जनों के आंख की देखभाल के बारे में हम बातचीत करेंगे। और मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने विशेषज्ञ का, डॉक्टर विभूति भूषण। ही इज एमएस ऑप्थो, शंकर नेत्रालय चेन्नई से रेटिनल फेलोशिप है इनका। ये निदेशक हैं विष्णु नेत्रालय जमशेदपुर में। मशवरा में राखी रमोला द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। और मैं अब डायरेक्ट में अपने एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट the causes of visual impairment in the person with intellectual and developmental disability। जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन है उनके देखने में कमी या दृश्य की हानि या दृश्य की क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। we'll go to direct to the our expert Dr. Vibhuti Bhushan ji। Good afternoon, everybody. Yeah. First of all, I must thank the organizers of Mashwara for giving me this opportunity to share my views and help them in some way or the other, so that they take care their eyes of their. Can you hear me clearly? Yes, very clear. Yeah. So that I can be of some help in their day-to-day routine life. As far as this particular entity is concerned, where the intellectual developmental disability is there are a number of reasons for that. And every reason has got a different spectrum of eye problems associated with that. What happens is there are basic 4 or 5 categories. One is neurological, the other is a visual impairment or sensory impairment, where we have vision and the other sense organs which are affected in those persons who don't have this sensory, these sensations normal as compared to the others, other normal children, other normal persons. In neurological diseases, normally what we get is there is a cerebral palsy or diseases like that, in which we can get certain diseases in which the nerve gets affected. It is like the main switch is affected, the bulb is all right, but because the current is not passing to the bulb, so there is a deprivation of vision. Then there are some diseases, some metabolic disorders are there in hypothyroidism, and other diseases are there which lead to some visual impairment. Commonly, if we go to the reasons, other than cerebral palsy, we have this Down syndrome, which is very common in these children which develop these kinds of disability. Then we have cerebral palsy, rubella syndrome is there. Some viral infections are there. Cytomegalovirus infection is there. But one thing is common, that they ultimately lead to visual deprivation. In patients with Down syndrome, which is very common and we find it very commonly, we get refractive errors. The patient can have high requirement of glasses. They can develop myopia, they can develop hypermetropia, and they can develop cataract. Certain infections, viral infections that we get in these children which who develop this kind of disease, they have some retinal disorders. Some premature babies can develop these kinds of disorders where the retina is not fully developed. They have cataract, they have some scar in the retina. It's like the retina is the, you can understand that if there is a camera, the reel, the photographic reel is the retina. If that is damaged, the image will not be formed properly and the person will be visually deprived. And vision is such an important sensory organ, that it coordinates all the other senses. It is rightly said that a picture cannot be explained even in 1,000 words.
A person who sees something, if we see something, the kind of information it gives us, the kind of information that we get from by seeing a picture, it cannot be compared by adding all the other sensations also. So vision is something that is very important for an intellectual development of a child as he grows older. So we must take care of the eyes, and it is rightly, as it was rightly said by the organizer in the beginning, that a periodic checkup is a must for these children. So this is the broader thing. I would like to have some specific questions if you have, and then I can Yes, yes. go on. Sir, I'll request you, could you please little explain in Hindi also? We have the bilingual program, Okay. and we have the persons from around the world. If you can say, we have the person from London, we have the person from Kuwait and all. So, Okay. and we have the lot of persons from the Hindi speaking areas. I'll do Yeah. ये जो जिस बीमारी की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी की बात जो हो रही है, ये इसके कई कारण होते हैं. कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन से या नर्व से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेरेब्रल पैल्सी उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है. कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उस तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है. कुछ हैं जो कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे सेरेब्रल पैल्सी, वो उसमें ये होता है. फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है, अगर बच्चे में वो हो जाए तो आगे उसके ग्रोथ में काफ़ी बाधक हो सकता है वो. तो ऐसी जो चीज़ें हैं, या फिर समय से पहले जिन बच्चों का जन्म होता है, जिनको प्रीमेच्योर बेबीज कहते हैं, उनमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जो आँख पूरी तरह से कभी कभी बनती नहीं है. तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक बीमारी होती है जो कि उनमें होने की संभावना होती है, लेकिन उसमें भी आँख का जो पर्दा होता है वो खराब हो जाता है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए इस तरह के बीमारी में कि वास्तविक कारण क्या है. अगर एक बार हमें ये पता चलता है कि उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, आँखों की कोई समस्या है, तो फिर उस पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँख से जो हम देखते हैं वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, और वो बाकी सारे सेंसेस को कोऑर्डिनेट करता है. अगर कोई देख नहीं पा रहा है, वो भले उस किसी चीज को छू कर अनुभव कर सकता है, किसी चीज को सूंघ सकता है, किसी चीज को वो सुन सकता है, लेकिन वो उसको इमेजिन नहीं कर सकता है. वो एक होलिस्टिक व्यू जो होता है, पूरे को इमेजिन करके, और उसका जो इंफॉर्मेशन है जो देख करके मिल पाता है, वो बाकी सारे सेंसरी ऑर्गन्स उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं. तो हम लोगों की हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके, थोड़ा भी अगर हम उसमें 1% की भी बढ़ोतरी कर सकते हैं अगर विजन में, तो वो शायद उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो सकता है. इसलिए हर संभव कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो भी इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो भी इसको फेस कर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग मिलकर और उनके विजन को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल नियमित रूप से उनकी जांच और सलाह जरूर लें. Great, great. Thank you very much, sir. You have given the very broader perspective कि हम किस किस दृष्टिकोण से कैसे कैसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट वाले लोगों जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं. जैसे आपने कहा कि न्यूरोलॉजिकल तरीके से भी समझ सकते हैं और डेवलपमेंटल तरीके से भी समझ सकते हैं. मैं यहाँ एक क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, वो कोई बीमारी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है, बट जो एक आम व्यक्ति जिस तरह से बीमार पड़ता है, उसी तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले भी लोग बीमार पड़ सकते हैं. अगर आम तरह से किसी भी आम जो कॉमन मैन है उसका अगर आंख खराब हो सकता है, तो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों का भी आंख खराब हो सकता है, उनके आंख में प्रॉब्लम आ सकती है. मैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस from audience is most welcome. We are also live on the Facebook. Please share your questions in the message box. हम आपके सवाल या सुझाव का बहुत ही खुले दिल से स्वागत करते हैं. हम Facebook के माध्यम से भी लाइव हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं हमें. कृपया मैसेज बॉक्स में आप अपने प्रश्न और अपना सुझाव जरूर साझा करें. और I have seen that Dr. Sahab, you are from Jamshedpur.
मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक जमशेदपुर से भी हैं, तो मैं इतना ही नहीं कहूंगा कि आप यहीं पर साझा करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंसर्न regarding, especially regarding in intellectual and developmental disability, you please consult Dr. Vibhuti sir, and he is very great person, and in आपके first talk में ही पता चल गया you have the very good knowledge about our intellectual and developmental disability. So we'll go in the next part. The recognizing and identifying the visual impairment is the very first key stage in our person with intellectual and developmental disability. This can be difficult as the patient with intellectual and developmental disability may have impaired communication, ability to communicate, or unable to attend the regular eye checkup. मैं देखा बहुत ऐसे देखा जाता है कि दृष्टि की जो क्षति है उसको पहचानना ही हमारा की कमी हो रही है, हमें देखने में कम पड़ रहा हमारे बच्चे को, वो पहचानना ही हमारा पहला और प्रमुख चरण होना चाहिए या है। यह पहचान कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे जो आईडीडी वाले व्यक्ति हैं उनके संप्रेषण में, उनके कम्युनिकेशन में हम नहीं समझ पाते उनके कम्युनिकेशन को, उनकी क्षमता भी थोड़ी लिमिटेड होती है, तो जिसके कारण हम उनकी बात को नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम नियमित नेत्र जांच नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नेत्र जांच में हम वो बच्चे या वो व्यक्ति शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। सो लेट अस टॉक अबाउट सम मोर साइन एंड सिम्टम्स of the visual loss in the person with intellectual and developmental disabilities with our expert Dr. विभूति भूषण सर, प्लीज हमें ये बताइए कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे में अब विजुअल लॉस होना शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जन्म से ही हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अगर वो बच्चा प्रीमेच्योर है तो हम जानते हैं कि उसमें किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो ये जिम्मेदारी अस्पताल की भी बनती है, पेरेंट्स की भी बनती है कि वो उस बच्चे की जांच करवाएं। आमतौर पर ऐसा होता है कि प्रीमेच्योर बेबी कुछ दिन तक अस्पताल में उनको रखना पड़ता है स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो अस्पताल से अक्सर उनको ये बताया जाता है कि नहीं, आपको अपनी आंखों की जांच करवा लेनी है कि प्रीमेच्योरिटी की वजह से उसमें कहीं कोई कमी है कि नहीं, और वो जांच में पता चल जाता है। जन्म के समय अगर सेरेब्रल पैल्सी का डाउट होता है, बच्चा अगर देर से रोया है, तो उसमें फिर वो उस तरह की जिसमें कहते हैं कि देर से रोने का बेसिक पर्पस यही होता है कि बच्चा जब रोता है तो वो सांस लेता है, हवा अपने फेफड़ों में भरता है, तो वो अगर हवा अपने फेफड़ों में भर ले रहा है, इसका मतलब कि उसका ऑक्सीजनेशन उस समय से शुरू हो गया है। इसीलिए कभी कभी उसको चिकोटी काटी जाती है, उसको हल्की सी थपकी भी लगाई जाती है, जिससे कि बच्चा रोए, कि जैसे ही वो रोता है वो सांस अंदर खींचता है, उसका सिकुड़ा हुआ फेफड़ा बिल्कुल खुल जाता है और फिर वो हवा का प्रवाह पूरा शुरू हो, उसके ब्रेन में जाना शुरू हो जाता है। बच्चा अगर देर से रोता है तो उतनी देर तक उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक हिस्ट्री है जिससे कि पता चल सकता है अस्पताल से ही कि इस तरह की समस्या इसको हो सकती है, और वैसे में इंतजार नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके बच्चे की जांच करनी है। सेरेब्रल पैल्सी में चूंकि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आंखों के अलावा और भी कभी कभी दूसरी समस्याएं आती हैं, जो कि कुछ लक्षण हैं जो ये बता देते हैं कि नहीं ठीक है, कुछ एक समस्या शायद इसके साथ हो रही है या हो सकती है, तो आगे बढ़ना है। डाउन सिंड्रोम का जहाँ तक सवाल है, वो जो कि क्रोमोसोमल एक एबनॉर्मेलिटी है, उसमें भी होता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, चेहरे का ऐसा अपीयरेंस होता है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि बहुत शुरुआती समय से ही उनका पता चल सकता है। 3-4 महीने की उम्र तक जा करके हम देखते हैं कि बच्चा माँ के साथ आंखें मिलाने लगता है, उसकी आंखें थोड़ी स्थिर होने लगती हैं। तो वो सारी चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये समझ में आने लगता है कि शायद बच्चे की आंख में कुछ समस्या हो सकती है। बच्चा आमतौर पर कभी कभी आंखों को टेढ़ा कर लेता है, वो ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा समय तक होने लगे, हमेशा टेढ़ी रहने लगे अगर आंख उसकी, तो फिर ये एक सिम्टम, एक साइन बनता है कि तुरंत ये खटका होना चाहिए कि बच्चे की आंख में शायद कोई समस्या, कोई जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन शायद कोई समस्या है, तो उसकी फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी कई बार देख करके गाइड कर देते हैं कि नहीं, इनको आंख की कोई समस्या हो सकती है, तो आप उनके पास उनको ले जाएं।
Yeah, कभी-कभी जी, bilingual is the yeah, yeah, demand. yeah. No, I'll Literally, definitely, yeah, I'll yeah, please, definitely do yeah. it. See, since birth only, we can find some signs which children need examination. Like in premature babies, we know the history itself is very clear that the baby is premature. Many of the times, the hospital itself refers the baby for an eye checkup. The pediatricians refer the baby for an eye checkup. Uh, all premature babies don't have any eye problem. But if the baby is premature, then it becomes mandatory to check the eye of that baby. As you rightly said, that babies are not going to say anything. They are not going to complain. It is our responsibility. It is doctor's responsibility, parents' responsibility to find out the reason, to find out if there is any abnormality. And if at all there is any abnormality, we need to tackle it as early as possible. So that is one thing. Then if the baby cries later, like it should be within 2-3 minutes after birth. But if that the cry is delayed, that means there is less oxygen that has gone to the brain. So the brain can get affected because of that. And cerebral palsy is one of the effects of that. So that is again a history from the hospital itself, from the right from the birth itself, we know. So the baby has to get checked actually, whether he has any eye problem or not. Certain infections are there, which if the mother had during pregnancy or the baby has immediately after delivery, then that also needs to be checked. The baby needs to be checked so that to find out whether that infection has led to any eye problem or not. So there are many things that the history and right from the birth itself we know. But as far as Down syndrome is concerned, Down syndrome is again a chromosomal anomaly. Eye problem is not alone. There are other problems also, some facial expressions and other things. It's a combination of features which can guide you that there is some problem might be there. So it becomes the responsibility of the doctors, it becomes the responsibility of the parents in these conditions, right from the very beginning, to be careful and get the child checked as early as possible. Sometimes what happens, the eyes are not aligned. The eyes are what we call squinting. The one eye is straight, the other eye is gone out, the other eye is bending inwards. Sometimes, normally when we look in the eyes, there is a white reflex. Normally we see the black pupil, but there is whiteness in that. Sometimes cataract develops very early. So that white reflex is an indicator of a cataract. So these things are which mother can notice very well, and the doctors are also if they know, they definitely they will guide the parents to take the children to the hospital. So this is the very beginning. This is in the very beginning when the child is not telling anything. The child cannot complain. But as the child grows, there are different mechanisms, there are different methods by which, by examining, we find out whether there is any problem with the child or not. But the parents have to, the moment the child attains the age of 2 years, 3 years, 4 years, nowadays the preschool children, the children learn ABCD by the age of 3.5 years, 4 years time. The moment the child starts reading, they should be brought to a eye specialist for checkup, just to see even a normal child also, just to see whether there is any problem with the vision or not. And during that routine examination also, we find a number of patients who had significant problems which could lead to personality or intellectual development disorders. So we can prevent a lot of those things. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब बच्चा जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, अक्षर की पहचान उसको होने लगती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो पहचानने लगता है, तो उसी समय ये जरूरी है कि एक बार उसके विजन की जांच हो जाए. आजकल स्कूल्स में भी बहुत सारे सर्वेज होते हैं, टीचर्स को भी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो लिख के दे रहे हैं वो बच्चा सही से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, पहचान रहा है कि नहीं. तो कई बार जल्दी पहचान हो जाती है, और बहुत बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि नॉर्मल बच्चा है जिसकी कोई कंप्लेन नहीं है, पेरेंट्स को भी पता नहीं है, लेकिन उसमें आंखों की ऐसी समस्या निकल आती है
जिसको कि उस समय ठीक कर देने से उसका आगे हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पॉसिबिलिटी को हमने खत्म कर दिया। वो उस समय ही उसको हमने ऐसा उसका इलाज हो गया उसका। बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार होती हैं, सिंपल एक चश्मे देने की बात होती है जिससे कि उसका विजन इंप्रूव कर गया और उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे उनको पता ही नहीं कि ये उनकी समस्या है, उनको लगता है सबको ऐसा ही दिखता होगा। अगर किसी बच्चे को कम दिख रहा है तो वो नहीं जानता है कि उसको कम दिख रहा है, उसको लगता है कि सबको ऐसा ही दिख रहा होगा, दुनिया ऐसी ही दिखती है सबको, ऐसी ही दुनिया है। तो वैसे में ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान दे और विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बच्चे को ना हो उसके लिए गाइडेंस दे बिल्कुल। और जो बड़े बच्चे हैं उससे संबंधित जो अगर वैसी स्पेसिफिक कुछ बात हो तो बताइए, मैं फिर उस पर जी जी जी, एलाबोरेटली आपको ग्रेट बताता ग्रेट। हूँ। बहुत ही आप इंफॉर्मेटिव शब्दों में बोला कि फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, पेरेंट्स हैं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, इवन फ्रॉम द बर्थ। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बच्चे का समय के साथ जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है, स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, जहां जा रहा है, हर क्षण हम अगर थोड़ा सा विजिलेंट हो तो वी कैन फाइंड आउट कि हमारे बच्चे में कोई आई संबंधित, कोई आंख के संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। Sir, we have a few questions which I have noted here, and मैं वो एक एक करके आपसे बात करता हूँ। एक तो है कि जो हाइपोथायराइज्म है उसका इम्पैक्ट क्या होता है आईज पे। एक पहला क्वेश्चन ये है सर। हम लोग एक एक करके, हमारे पास अभी 4 क्वेश्चंस हमने लाइन अप किया है सर। वी विल टेक द ऑल 4 क्वेश्चंस इन दिस पैच। ओके, सो हाइपोथायराइज्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उससे क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म का ऐसा कोई बहुत विशेष असर आंख पे नहीं पड़ता है। जी जी, हाइपरथायरॉयडिज्म का पड़ सकता है, लेकिन ओके, जो डिसेबिलिटी होती है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में ज्यादा होती है, ग्रेट उसमें ग्रेट। उनका ग्रोथ अफेक्टेड होता है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण अलग होते हैं, उसमें आंखों में सूजन हो जाती है, आंख कभी कभी आगे बल्ज कर जाती हैं, जिनको प्रोक्टोसिस कहते हैं, उस तरह की बात हो सकती है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म का आंखों पे बहुत कोई ज्यादा विशेष असर कुछ नहीं। असर नहीं है। जी जी, बहुत ऐसा देखा गया कि विजुअली जो डिफिकल्टी है, जो जब हम विजुअल चेक करने के लिए जाते हैं, जब विजन का, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो खास करके जो अभी एक क्वेश्चन आया कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो नॉन वर्बल है, वो बोल नहीं पाता है, या फिर अगर वो वर्बल भी है तो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, तो उनकी जो विजुअल एक्यूटी का जो चेक है वो सही से नहीं हो पाता है। तो हम लोग उस पे एक अलग से हमने क्वेश्चंस रखा है। वी विल टेक इट, बट इफ यू हैव एनी हाईलाइट टू डू इट समथिंग, कि जो बच्चे विजुअल जांच के समय में हम कैसे उस बच्चे को कोऑपरेट करें, या कैसे हम उस बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, कोशिश तो हमेशा हम लोगों की रहती है कि बच्चा देख करके रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि जी वही जी, सबसे एक्यूरेट, उसी के आधार पर हम लोग सबसे एक्यूरेट उसको चश्मे का नंबर देना है या जो भी है उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इस जांच में दो पार्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। जी जी, ऑब्जेक्टिव वो पार्ट है जो हम देख रहे हैं, हम जो अपनी जांच में पा रहे हैं, और सब्जेक्टिव होता है कि वो जो बच्चा है, जो जिसको हम पढ़वा रहे हैं या जिसकी आंख जांच हम कर रहे हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन और बच्चे का रिस्पॉन्स अगर दोनों मैच करता है तो बहुत एक्यूरेटली हम लोग उसकी आंख की समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर बच्चे का रिस्पॉन्स उतना रिलायबल नहीं होता है, वो अगर सही से नहीं बता पा रहा है, अगर अक्षर का ज्ञान उसको नहीं है तो कुछ शेप बता सकता है, कुछ नंबर की गिनती बता सकता है, बीच बीच में बहुत पेशेंटली करना पड़ता है, समय काफी देना पड़ता है, बच्चे को भुलाना पड़ता है, उसको कुछ खिलौना दे करके, और किसी तरह से उसके तरीके हैं जो कि हम लोग एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी का पूरा ब्रांच ही एक होता है, जो कि इसमें हम लोग कि बच्चे को किस तरह से उसको पता न चले कि वो अस्पताल आया हुआ है, उसकी जांच हो रही है, खेल खेल में उससे ये जानकारी निकालना ये आवश्यक हो जाता है। अगर फिर भी बच्चा किसी वजह से हमें रिलायबल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, मतलब सब्जेक्टिव वाली चीज अगर उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो हमारे अपने एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव व्यू जो है उससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और फिर जो भी उसकी समस्या होती है, चश्मे का नंबर ही देना है या फिर और आंखों का प्रेशर चेक करना है या बाकी चीजें जो है, चश्मे के नंबर के लिए ही सबसे ज्यादा उनके रिस्पॉन्स की जरूरत होती है।
बाकी चीजों के लिए तो कभी कभी हम लोग सिडेट करके भी एग्जामिन कर लेते हैं, अगर बच्चा स्थिर नहीं रह रहा है तो। कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बड़ी बीमारी की आशंका होती है तो बेहोश करके भी चेकअप करना पड़ता है। लेकिन अगर चश्मे का नंबर देना है या उसकी विजन से रिलेटेड वो करना रहता है, तब फिर वैसे में हम लोग ऑब्जेक्टिव, मतलब हम लोगों ने जो जांच करके जो फाइंडिंग्स निकाली है उसके आधार पर हम लोग इलाज कर देते हैं। और समय समय पर जब जांच होती है तो बच्चा भी कई बार क्या होता है कि पहली बार आया तो वो भड़का हुआ रहता है, बिल्कुल उसको लगता है कहाँ मुझको लेके आ गए हैं। दूसरी बार आएगा, उससे अगर उसको अच्छा व्यवहार मिला, उसको कभी टॉफी हम लोगों ने दे दी, फूल दे दिया, कुछ गिफ्ट में कुछ एक कलर्ड कोई चीज हमने दे दी, तो इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। तो बच्चा थोड़ा फेमिलियर हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हो जाता है। तो वैसे में ग्रेट, फिर हम लोगों के लिए भी आसान हो जाता है कि उसकी सही इलाज उसका हम लोग कर पाए। ग्रेट, ग्रेट। सर एक इस सेगमेंट में हम एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर आंख में जलन हो रहा हो, आंख में पानी निकल रहा हो, एनी हाउ दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द पेरेंट्स कि वो बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके आंख में आ रहा है, उस समय हमें क्या करनी चाहिए? और खास करके जो ये क्वेश्चन आया है वो आया है कि उसके बच्चे का आई जो है स्क्विंट है, तो स्क्विंट आई में थोड़ा सा देखने में भी थोड़ा वो अलग दिखता है, तो ज्यादा ही वो पेरेंट्स जो है घबराए हुए होते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, सब सही है। तो क्या ये आंख से पानी आना, जलन होना, स्क्विंट आई होना, ये इसके बारे में आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, आंख से पानी आना या जलन होना अगर थोड़े जी। समय के लिए होता है, फिर अपने आप वो ठीक हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो परसिस्ट करता है, अगर वो जलन जो है वो लगातार बच्चे को दिन भर रहती है, आंख में लगातार कई दिनों तक रहती है, या पानी आना लगातार पानी आता रहता है, तब फिर उसका कारण जानना होगा। जैसे पानी आने के कई कारण हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बुखार होना, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं उससे बुखार हो सकता है। वैसे ही पानी आना भी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कई कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से वो आंखों से पानी आ सकता है। उनके बच्चे का जैसे बता रही है कि वो स्क्विंट है, अगर आंख पे ज्यादा जोर पड़ रहा है स्क्विंट की वजह से, तो आंख से पानी आना स्वाभाविक है। वैसी स्थिति में तो नेत्र रोग विशेषज्ञ जो है, आई स्पेशलिस्ट है, उनकी सलाह लेनी चाहिए उनको, क्योंकि स्क्विंट का इलाज संभव है। बहुत सारे ऐसे उसके टाइप्स हैं जो कि सिर्फ सही चश्मे का नंबर देकर के सही किया जा सकता है, और नहीं तो उसकी सर्जरी करके भी उसको सही किया जा सकता है। ग्रेट, तो ग्रेट। वो बिल्कुल घबराए नहीं, अगर स्क्विंट है तो वो आई स्पेशलिस्ट की सलाह लें। और अगर आंख पे उसकी वजह से जोर पड़ रहा है और उससे अगर पानी आ रहा है, तो फिर वो एक बार स्क्विंट करेक्शन होगा तो बाकी समस्या भी सही हो जाएगी। यस, अभी जो एक श्रोता ने सवाल पूछा कि स्क्विंट में स्पेक्ट लगा सकते हैं क्या? जरूर लगा सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं तो आप जरूर बिल्कुल लगाइए। बिल्कुल या बिल्कुल। विल आस्क आवर ऑडियंस, विल रिक्वेस्ट आवर ऑडियंस कि अगर आपको मनोविकास से कोई भी सेवा या कोई भी सुविधा प्राप्त करनी है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड, वी आर रियली वर्चुअली ओपन। मनोविकास ई ज्ञानशाला के थ्रू, हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे टेलीफोन नंबर 9911077772 के थ्रू हम लोग उपलब्ध हैं। आप हमारे से टेली काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप मशवरा में ज्वाइन कर सकते हैं, आप मन भावन में ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे रेगुलर मैसेंजर को पढ़ सकते हैं। तो हम आपको बहुत तरह की सुविधाएं, बहुत तरह के इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर सकते हैं। विल गो टू द आवर एक्सपर्ट। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन वाले व्यक्ति में जो दृष्टि की जो हानि है, उसके कुछ लक्षण होने से बहुत सारा व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है, उनके बच्चों के व्यवहार में भी काफी सारा हम चेंज देख सकते हैं। सो मेनी बिहेवियर्स आर एसोसिएटेड विद द साइट लॉस ऑफ आईडीडी, पीआईडीडी, इंक्लूडिंग उसको एंग्जाइटी हो जाता है अनफेमिलियर सिचुएशन से, अपरिचित स्थानों से वो स्थिति में वो चिंता करने लगता है, अनविलिंगनेस टू वेंचर आउट ऑफ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, उसे जो तात्कालिक वातावरण है वहां से निकलने में वो अनिच्छा अपनी जाहिर करता है। फुटपाथ के किनारे या खराब रोशनी वाले जगह पे वो उसको चलने में, उनके कदम को देखेंगे कि उसके कदम में घबराहट होती है, उसको चलने में घबराहट होती है। ही हेजिटेट्स ऑन स्टेप्स, ऑन पेवमेंट्स, एड्स ऑन और इन द पुअरली लिट एरियाज। कभी कभी देखा जाता है कि डिप्रेशन भी बहुत बच्चों में देखा जाता है, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन भी देखा जाता है, आई पोकिंग और रबिंग भी होता है उन बच्चों में, हताश होना, गुस्सा होना, आंख को बार बार रगड़ना, रिड्यूस इन द सोशल और डोमेस्टिक स्किल्स इन पार्टिसिपेशन। आप देखेंगे कि उसके
जो सामाजिक और घरेलू कार्य है उसकी भागीदारी कमी हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द फैमिली, फ्रेंड्स, टेलीविजन एंड सोशल एक्टिविटीज, इवन की अनड्यू अलार्म एट अनफेमिलियर नॉइज और व्हेन अप्रोच एंड मे बी द सम सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर भी हम देखते हैं कि इस तरह के बच्चों में होता है। वो अपने परिवारों से, दोस्तों से टीवी या सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेना कम कर देते हैं। अपरिचित शोर या जब संपर्क किया तो वो थोड़ा अलग सा ही अलार्म बजाते हैं, अलग सा ही कुछ अपना बिहेवियर शो करते हैं। कभी कभी वो स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब बहुत सारे ऐसे भी बिहेवियर्स एसोसिएट हो सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें अगर विजन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके बिहेवियर में बदलाव हो जाता है। सो सर, वी वांट टू नो कि जो आपके पास एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आर द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद द साइट लॉस इन द पीआईडीडी। ऐसे जो लोग होते हैं, आप क्या क्या बिहेवियर्स, क्योंकि वो आप ज्यादा देख सकते हैं कि उनके बिहेवियर में क्या क्या बदलाव हुआ रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो इससे भी थोड़ा पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि हम ये बिहेवियर जब देख रहे हैं तो मे बी देयर इज सम सिम्टम्स और समथिंग ऑन द आई प्रॉब्लम्स। या सर। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग पर्सनल लेवल पर तो मैं इस तरह के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो बच्चे आते हैं मेरे पास, जैसे आपने बताया कि आई पोकिंग का उनमें एक टेंडेंसी होती है। होता क्या है कि आई को पोक करने से अंदर का जो रेटिना है वो स्टिमुलेट हो जाता है और एक लाइट का सेंसेशन मिलता है। तो जिस बच्चे को नहीं दिख रहा होता है वो बार बार पोक करता है क्योंकि उसको लाइट का सेंसेशन उससे मिलता है, तो ये उसकी हैबिट हो जाती है, वो लाइट के सेंसेशन के लिए वो बार बार पोक करने लगता है। तो ये एक कॉमन चीज है। अगर ऐसा लगे कि बचपन से ही वो बच्चा बार बार आंख को काफी रगड़ रहा है और काफी छोटे से ही अगर वैसा कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि आंख को चेक कराने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि विजन जो है, देख करके आदमी अपने एनवायरनमेंट से जितना ज्यादा कनेक्ट हो सकता है, वो बाकी सारे सेंसेशंस को मिला दिया जाए तब भी वो उसके बराबर नहीं हो पाता है। तो जब किसी को कम दिख रहा होता है तो ऑटोमेटिकली विजुअल इनपुट कम होने की वजह से वो बाकी सेंसेशंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। और उसके आसपास के लोग, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उनको भी लगता है कि अच्छा ये तो उसको देख नहीं पा रहा, इमेजिन नहीं कर पाएगा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जबकि होना बिल्कुल इसका उल्टा चाहिए। अगर किसी को कम दिख रहा है तो पेरेंट्स को और उसको एनवायरनमेंट को शब्दों में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जिससे कि वो अपने आप को कनेक्टेड फील कर सके अपने माहौल से। क्योंकि जिसको कम दिख रहा है, जिसकी रोशनी कम है, वो उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाता है और इसी वजह से वो अपने आप को डिसोसिएट करने लगता है धीरे धीरे। उसमें गुस्से की प्रवृत्ति आती है, उसमें डिप्रेशन की प्रवृत्ति आती है और आई कांटेक्ट नहीं करता है। वो अक्सर गुमसुम बैठा रहेगा नजर नीची करके, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है। तो सामने वाले के साथ जो जैसे आमतौर पर हम लोग बात करते हैं तो आई कांटेक्ट बना करके रखते हैं, वो नहीं करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के कुछ भी लक्षण हो तो तुरंत सलाह, विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और आई चेकअप तो जरूरी है, क्योंकि उससे चेक करके ही हम लोग जो भी उसमें सुधार हो सकता है उसकी स्थिति में वो कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा काउंसिल भी कर सकते हैं पेरेंट्स को कि इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या ये कर सकता है और कहाँ इसको खतरा है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को भी पता नहीं चल पाता है, तो वो बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है या कहीं ऐसी जगह अकेले निकलता है जहां पर कि उसकी लाइफ को रिस्क है। तो वो सारी चीजें समझाने की बात है। कुछ बीमारी ऐसी है जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी है, जिसमें बच्चे को दिन में बिल्कुल सही दिखाई देगा, लेकिन शाम होते होते जैसे अंधेरा होगा या डिम लाइट होगी, उसको दिखना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो इसमें भी कई बार पहचानने में काफी देर होती है इस बीमारी को भी। तो इस तरह के भी कुछ लक्षण है। शाम को जैसे बच्चा खेलने नहीं जाएगा, वो बाहर जाने से कतराएगा, उसको भी पता नहीं है कि क्या ऐसी समस्या है। पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ लक्षण होता है, जो रतौंधी की बात है, एक तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से भी होता है, जिसको कि विटामिन ए से हम लोग सही कर सकते हैं। लेकिन एक रतौंधी है जो कि पर्दे की बीमारी की वजह से भी होती है, तो उसमें फिर डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है। सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। Actually what happens is when the visual input is less, the vision is less, then because this is the most important sensory organ, the child or the person
he feels disconnected from the environment. No other sensation or the combination of other senses can give the effect what vision gives. So the child is not at all familiar with the environment. No matter how well he is explained or whether he touches, smells, or listens to the other inputs. So it becomes the responsibility of the parent also to explain everything in detail to the children who are not able to see clearly, so that they feel connected with the environment. And the more connected they'll be with their surroundings, the easier it will be for them to behave normally, to interact normally with their friends, with the surroundings. So that becomes very essential. And you said about poking of your poking the eyes. Some child do that. Those who have very little amount of vision, what happens is when you apply pressure on the eye, the retina gets stimulated and there is sensation of light that the person feels. So because of that, it becomes a habit of that child. Because he is not able to see anything, he keeps on poking his eyes, at least to feel a sensation of light. So if from the very early, if the parents notice that the child is rubbing his eyes very vigorously or poking fingers in his eyes, so that is a sign that they should be careful and they should take that child to the doctor. Great. Sometimes what happens is in the evening, a child has difficulty in seeing. During daytime, when the light is good, he is able to see normally. He is as normal as any other child. But as during dusk or in the night, he is not able to see clearly. So this is something that the child also doesn't feel that he has any difficulty. The parents also don't realize that he has any difficulty. But if this thing is there in the mind, that if you notice such things, then immediately you should take that medical help. Yeah. सर हमारे एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर ही हैं, उनका एक सवाल है कि ज्यादा देर तक सोचने से आंख में पानी आ जाता है, इसका क्या कारण है? सोचने से भी सोचने से ये देखिए कि इमोशनल कनेक्शन तो होता ही है जरूर, क्योंकि हम लोग जब भी इमोशनल होते हैं तो आंखों में पानी आ जाना बहुत स्वाभाविक है। अब सोचने पे भी हो सकता है ऐसा, लेकिन उसका एक कारण मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर सोचते समय वो बहुत देर तक अपनी आंख को खुली रखते हैं, या वो जैसे कई बार होता है कि सोचने के क्रम में आदमी पलक नहीं झपका रहा है, बहुत ध्यान से किसी चीज को देख रहा है या सोच रहा है, बहुत देर तक अगर आंख को हम खुली रखें तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, कोई एसोसिएशन। और ये विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का क्या कारण है? विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। ये भी नहीं, ये मैं भी नहीं समझ पाया। उसके बाद सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट वी कैन टेक इट। एक 10 साल का बच्चा है जिसको कलर आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, क्या उसका आई प्रॉब्लम है? जी, कलर विजन का जो है वो बेसिकली हम लोग आई प्रॉब्लम ही मानते हैं, और ये कंजेनिटल होता है, ये बाद में डेवलप नहीं करता है, ये जन्म से ही रहता है। यही है कि पता कब चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत बचपन में तो पता नहीं चलता है, खास करके जब जॉब के लिए लोग इंटरव्यू में जाते हैं, मेडिकल चेकअप होता है या डिफेंस में, कहीं भी रेलवे में या किसी फैक्ट्री में, तब फिर वो लोग आई चेकअप मैंडेटरी होता है। रूटीनली हम लोग कलर विजन चेकअप नहीं करते हैं। जब कोई पेशेंट हम लोगों के पास आता है तो कलर विजन का चेकअप हम लोग रूटीनली नहीं करते, वो प्रोटोकॉल में नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली कभी करना होता है किसी का, तो हम लोग उसमें फिर उसका जो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, इशिहारा चार्ट होता है, उसमें नंबर्स और उससे हम लोग करते हैं। कलर विजन में 3 प्राइमरी कलर हैं, ये हम सब जानते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इन तीनों में किसी एक कलर का भी ब्लाइंडनेस हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि उसको रेड बिल्कुल भी ना दिख रहा हो, या हल्का फुल्का दिख रहा हो, कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। तीनों कलर के लिए होता क्या है कि बच्चा अगर पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके शेड को वो आइडेंटिफाई कर लेता है। वो जानता है कि जिसको लोग रेड बोल रहे हैं वो ये है, उसको जैसा दिख रहा है उसको वो मान लेता है कि वो रेड है। उसको वो शेड जब दिखाई देगा वो उसको रेड बोलेगा। उसको एक पर्टिकुलर शेड जब दिखाई देगा, भले वो बाकी लोगों को ब्लू दिख रहा है, उसको वो ब्लू नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर उसको वो शेड दिख रहा है तो उसको वो प्रैक्टिस हो जाता है वो चीज। ये पकड़ में नहीं आता है नॉर्मली, जब तक कि बहुत डीप कलर ब्लाइंडनेस ना हो, जब तक कि कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस ना हो किसी कलर का, तब तक पता नहीं चल पाता है
और लेकिन हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें माइल्ड डिग्री का कलर ब्लाइंडनेस भी पता चल जाता है, क्योंकि रेलवे की नौकरी में या फिर डिफेंस सर्विसेज में ये बहुत स्ट्रिक्ट है और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कि इस तरह के बच्चे जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो अगर इस तरह की नौकरी में चले जाएं तो खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी एक खतरा हो सकता है। तो ये है। और दो चीजें हैं कलर ब्लाइंडनेस, एक तो जन्म से रहता है, बाद में डेवलप नहीं करता है, और दूसरी बात यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ग्रेट। एक और क्वेश्चन है सर, जिसमें एक बच्चा है जो 13 साल का है एंड उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ही इज प्रीमैच्योर बेबी एंड ही हैज वेरी he has at this moment he has the visual sensitivity and difficulty in sitting possible, और प्रॉब्लम भी है, आंख में दिखता भी नहीं है, पेरेंट्स को लगता है। then he is asking, the parents is asking what is the possibility to get the eye checkup done, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम है, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है एंड देन ही द प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसका आई चेकअप प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो नहीं, वो कैसे तो हम फिर उनको तो फिर सिडेट करके या फिर एनेस्थेशिया दे करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी है तो सबसे पहले रेटिना चेक करना जरूरी है कि रेटिना हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज में उसका प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। प्रीमेच्योर बेबीज में हाई माइनस पावर भी कई बार रहता है। जी जी -2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर रह सकते हैं। तो चेकअप हो जाता है और फिर हमने जैसे अंदाजा हो जाता है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं हो लेकिन अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि वो हो क्या सकता करना है है। उसका। ग्रेट। हाँ, क्या करना है कुछ उसमें किया जा सकता है। और बिल्कुल भी अगर एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो तो फिर एनेस्थेटिस्ट की मदद से हम लोग उसको सीडेट करके या एनेस्थेशिया दे करके चेकअप को पूरा कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। एक सर क्वेश्चन है कि वो 25 साल का उनका बेटा है एंड ही इज इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। वो धूप में जब भी जाता है तब उसका आंख लाल हो जाता है, और सिर्फ वो गर्मी के मौसम में ही उसका आंख खराब होता है और किसी मौसम में नहीं होता है। क्या दिस इज देयर इज सीजन इज कनेक्टेड विद द आई प्रॉब्लम? ये कुछ कुछ लोगों की आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो ज्यादा टेम्परेचर में वो रिएक्ट करने लगती है। तो वो हीट सेंसिटिव आई है तो एक तरह का एलर्जी है, एक तरह की जैसे हीट एलर्जी हो गई, आप समझिए उसको कि वो है। और गर्मी में ऐसा भी होता है कि गर्मी में कई बार सिर्फ धूप की तरफ देखने से नहीं, वो कुछ डस्ट से और कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से, कुछ फूल के पराग होता है जो उनका पॉलन होता है, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है जो उस पर्टिकुलर सीजन में रहता है। तो गर्मी में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलता है। जी वो कोई ऐसा बहुत मेजर इशू नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर एलर्जी बार बार वैसा होता है और हर हर गर्मी में या जब वो प्रकाश में देखे, धूप में देखे तब होता है, तो एक स्पेशलिस्ट से एडवाइस ले लेना चाहिए। एक हमारे यहाँ हमारे ही स्कूल का बच्चा है एंड उसका नाम है सोहम। उसको लो विजन है। देख तो लेता है, वो किसी तरह से देख लेता है, लेकिन उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई सलाह हो? देखिए, लो विजन के लिए अलग एक बिल्कुल सेगमेंट है, लो विजन एड कुछ आते हैं, कुछ मैग्नीफायर्स होते हैं, कुछ टेलीस्कोपिक लेंसेज होते हैं जो कि बच्चों के लिखने और पढ़ने में मददगार होते हैं। उनके मूवमेंट में तो वो शायद उतना मदद न कर पाए, लेकिन बैठ करके अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। कुछ आज इमेज को प्रोजेक्ट कर देते हैं, वो जो पढ़ना चाह रहा है, जो देखना चाह रहा है, एक माउस होता है जिसके नीचे कैमरा लगा होता है, उस माउस को उस पर मूव करके और वो कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट हो जाता है। तो लो विजन एड बहुत तरह का होता है, वो कस्टमाइज करना पड़ता है हर पेशेंट के हिसाब से कि उसका रिक्वायरमेंट कितना है, उसको नजदीक का कितना दिख रहा है, दूर का कितना दिख रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम है उसको, उसका रिक्वायरमेंट किस तरह का है। तो उसके हिसाब से बहुत सारे गैजेट्स हैं, लो विजन एड्स बोलते हैं, LVA। तो वो जहाँ फैसिलिटी हो, जिस शहर में भी है, वहाँ पे अगर कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है या कहीं पर लो विजन एड की कहीं सुविधा है तो वो एक बार वहाँ चेकअप करा लें, निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। ग्रेट ग्रेट। सो वी रिक्वेस्ट आर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिनको सांकेतिक भाषा में अनुवाद की उपलब्धता की जरूरत हो, तो वो राखी रमोला के विंडो में देख सकते हैं। सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। मैं एक बार सर नाउ विल गो फॉर द आई चेकअप के बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या उपयुक्त हो सकता है कि जो हमारा एक पारंपरिक जो ट्रेडिशनल
आई चेकअप करने का जो प्रावधान है, क्या वही वैसा ही प्रावधान, उसी प्रावधान से क्या हम, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही है कि वी हैव टू गो फॉर द ऑल्टरनेटिव मेथड्स, कि हमें उस बात के बारे में जो उसका चेकअप करना चाहिए, या फिर जो हमारे और भी डॉक्टर्स हैं जो भी आई स्पेशलिस्ट हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि या क्या हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करना चाहिए. So undertake the traditional vision acuity test may not be appropriate for many patients with the IDD, and other measures such as contrast sensitivity can be useful for demonstrating the reducing the visual functions. या एक फंक्शनल असेसमेंट के बारे में जो आपका कि सब्जेक्टिव टेस्ट हम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही यूजफुल हो सकता है डिटरमाइनिंग द पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. हम ये जानना चाहते हैं कि और क्या क्या पैथोलॉजी अवेलेबल है आई टेस्टिंग में, और कुछ ऐसे चीज, ऐसे कोई टेस्ट अवेलेबल हो नया जिससे कि हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों को सुविधा मिल सके. देखिए, टेस्ट तो बहुत तरह के हैं, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद ही वो हम लोग आगे अगला कदम बढ़ा सकते हैं. रूटीन चेकअप में है कि सबसे पहले उनका विजन चेक करना, विजन चेक करके उसका अगर विजन कम है तो उसका कारण को असरटेन करना कि किस वजह से विजन कम है. उसको करेक्ट करने के जो नॉर्मल तरीके हैं, चश्मा है, बाकी जो साधन है, कॉन्टैक्ट लेंस है, उनको उपयोग में लाना. अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता है तब फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं. और बहुत सारे एडवांस चेकअप हैं जो कि जैसे रेटिना के का चेकअप है, एंजियोग्राफी होती है, ओसीटी चेकअप है, जो कि आंख के पीछे वाले हिस्से के फंक्शन को वो लोग असेस करते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि आंख का कनेक्शन जो ब्रेन से है तो वो कितना इम्पल्स जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक कितना कनेक्टिविटी, वो उसके लिए ईआरजी, ईओजी, ये इस तरह के चेकअप्स हैं. लेकिन ये सब बाद की बात है. पहला इनिशियल एक रूटीन चेकअप करके उसका पहले रीजन को असरटेन करना, रीजन का पता करना कि किस वजह से ये चीज विजन में प्रॉब्लम हो रहा है. उसके हिसाब से फिर जिस दिशा में भी जाना है, जो भी फर्दर एडवांस चेकअप करना है, वो डिसाइड करना. ग्रेट ग्रेट. बहुत ही आपने अच्छा कहा कि हमें पहले एक रेगुलर चेकअप की आवश्यकता है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह की उसमें डिसेबिलिटी हो. उस रेगुलर चेकअप में एक बात बता देता हूँ. 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं. एक तो उसका विजन चेक करना, दूसरा अगर संभव हो तो आंख का प्रेशर चेक करना, वेरी गुड, और तीसरा आंख के पिछले वाले हिस्से के रेटिना का चेकअप करना. ये 3 चीजें बहुत जरूरी है और ये रूटीन चेकअप का पार्ट है. ये 3 चीजें होनी चाहिए. उसके बाद हम लोग 95% केसेस में हम लोग बीमारी का रीजन पता चल जाएगा कि किस वजह से ये हो रहा है. अगर ये चेकअप हम कर लें तो उसके बाद फिर एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं उनको हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं. We request all the audience, we will share the link of feedback for the certificate on the message box at the end of the session. हम सत्र के अंत में मैसेज बॉक्स में आपको फीडबैक और प्रमाण पत्र के लिए लिंक साझा करेंगे. We have, sir, because we are working for the person with intellectual and developmental disability, and once we talk about the disability, we have lot of reasonable adjustment is required. आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट के बारे में बताया, but so many adjustment can make the facilities access to the person with intellectual and developmental disability to access the any eye clinic or any eye specialist. एक IDD के साथ वाले जो व्यक्ति हैं उनके नेत्र चिकित्सा के लिए हम उचित समायोजन, उचित बदलाव, उचित थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता की जा सकती है while making the appointment. अगर हम if we are very much aware about the patient कि वो बच्चा कभी भी उसका behavior change हो सकता है, so we can change their schedule, we can make the alternative method of communication. हम उसके लिए picture boards रख सकते हैं. We can no eye drops, or we can say that do the eye drops at home first, जो कि बच्चा घर में ही थोड़ा सा काम होके वहां से आ जाए. Patient information about the medical condition is very important. Patient's attitude is very important. And that is very much important in the case of intellectual developmental disability as well as the जिस बच्चे को sensory issue है, autism है, कि उसको जो touch होता है, that is also they are avoiding, or sometimes they feel bad or they show their other kind of behavior, touch से भी. And while arriving the maybe the clinic, he can throw the tantrum or he can throw the some other things.
if the doctor or clinic has very information, prior information, they can arrange the seating areas, a quiet or calm place for that particular person. अपॉइंटमेंट में परिवर्तन कर सकते हैं, संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है उसकी वैकल्पिक तरीके हम यूज कर सकते हैं, घर में नहीं, घर में ही आई ड्रॉप डालकर हम क्लिनिक में आ सकते हैं। रोगी जो जिसको कि टच से ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने की संभावना होती है, तो वहां पर भी हम थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं। एक शांत वातावरण या एक शांत क्षेत्र क्लिनिक में हम रख सकते हैं, उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। एंड अबाउट द विजुअल असेसमेंट, आपने सर, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कहा है कि जो हम जो सब्जेक्टिव टेस्ट है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, दोनों को मिला के दैट वी टॉक अबाउट द फंक्शनल टेस्ट, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द चिल्ड्रन और द पर्सन, speaking about the person, why we should concern or why we should take care of our eyes, we should take care of our vision, that is very important। इसके लिए हम कोई बुकलेट बना सकते हैं, आई क्लिनिक में रख सकते हैं, और वो बुकलेट अगर अपने पिक्टोरियल लैंग्वेज में हो तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। सम टाइम इट हैपेंस कि while examining the patient, we have to explain कि why we are switching off the light, why we are turning off the light, turning on the light. So if we tell the patient priorly, तो वो उसका behavior जो है कि then it can be managed। And alternative way of checking eye pressure, sir, sometime we have gone through that कि हमारे जो बच्चे हैं उसका eye pressure check करने में we have to find out कि some alternative ways क्या हो सकता है। we also find out कि जो feedback है, how to get the feedback, मीन्स अगर वो कह रहा है, सब चीज पे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसका फीडबैक, अगर पिक्टोरियल फीडबैक वो बच्चा दे पाए या उस तरह का कोई पिक्टोरियल माध्यम हो, दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर देम। सो सर, आप इसमें क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए और क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हम यूज कर सकते हैं? प्लीज यू टेल अस इन योर टेक अवे मैसेज कि हमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव और रीजनेबल एकोमोडेशन वाला चीज करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं वो चूंकि एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाते, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाते। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन एक बहुत ही बड़ा टूल है सामने वाले के साइकोलॉजी को समझने के लिए, उसको शांत करने के लिए। तो अगर वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा है, वो एनवायरनमेंट से डिसोसिएटेड है, और सडनली हम उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, सडनली हम उसके सिर पे हाथ रखते हैं, उसके पैर पे हाथ रखते हैं, तो वो एक चौंक जाता है। तो सबसे पहले तो उसको उस माहौल से, उस वातावरण से फेमिलियर बनाने की जरूरत है, तभी वो आगे कोऑपरेट करेगा। अदरवाइज उसको हमेशा लगेगा कि वो एक एलियन एनवायरनमेंट में है, वो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से परिचित नहीं है उस माहौल से। सारी चीजें उसको दिख नहीं रही, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो अनजान है कि वहां पता नहीं क्या है, वहां पता नहीं क्या है, यहाँ क्या होगा। तो ऐसी चीजें हैं, तो इनके लिए बहुत पेशेंटली, बहुत ही सावधानी से, ये समझते हुए कि ये किस हद तक डिप्राइव्ड है, और उसके हिसाब से बहुत ही सिंपैथेटिकली, बहुत ही पेशेंटली उसको एग्जामिन करने की जरूरत पड़ती है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी। एक डाउन्स की पेशेंट हैं जो कि हमारे पिछले 6-7 सालों से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। अभी तो शी इज ऑलमोस्ट 38-40 ईयर्स ओल्ड। उनके दोनों फादर मदर दोनों डॉक्टर्स हैं। वो लोग कई बार चेकअप हुआ था और वो जाना नहीं चाहती थी चेकअप कराने के लिए। वो तो फीमेल डाउन्स की पेशेंट थी। किसी तरह से एक बार वो कन्विंस हो गई और मेरे पास आए वो लोग। तो समहाउ आई मैनेज्ड कि उनका रिफ्रैक्शन करके हमने उनको विजन करेक्ट कर दिया, उनका काफी हद तक विजन इंप्रूव कर दिया, जबकि आज तक वो चश्मा कभी लगाई नहीं थी। और चेकअप में वही सब्जेक्टिव मेरी जांच में जो आया कि इनको -5 नंबर का चश्मा लगना चाहिए, तो हमने उनको दिया। तो शुरू में वो बहुत रिलक्टेंट रही, लेकिन जब पहन करके थोड़ी देर बाद सडनली शी रियलाइज कि उनको चीजें काफी क्लियर दिख रही, तो वो उसके बाद इतनी खुश हो गई कि जब भी मेरे क्लिनिक में आती है, शी इज वेरी हैप्पी, शी कोऑपरेट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल पेशेंट। तो ये एक चीज है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात है। आप अगर एक रैपो बना लेते हैं उस बच्चे के साथ, और रैपो हर लेवल पे होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर और उसको एज ए पेशेंट नहीं, एक
पेरेंट्स का रैपो बने, उसके फ्रेंड सर्किल, उसके जो दोस्त हैं, भाई बहन, सिबलिंग्स है, उनका आपस में एक ऐसा रैपो बने कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि हम इन लोगों के बीच में हैं, हम यहाँ हैं, आई एम सेफ एंड आई एम अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, जो है हमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर डालना बहुत जरूरी है। और चूंकि पेरेंट्स सबसे ज्यादा साथ में रहते हैं, हमेशा माँ का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ज्यादा समय बिता रहे हैं उनके साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो लोग इस चीज को ध्यान में रख करके, और इम्प्रूवमेंट किसी भी लेवल से हो सकता है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये अब ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, नाउ दिस इज द एंड, अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी समझने की शक्ति बड़ी होगी, उसकी बाकी और सेंसेशंस को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये हमेशा एक कांस्टेंट एफर्ट होते रहना चाहिए। और होते 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 कई बार ऐसा देखा गया कि सडनली एक थ्रेशोल्ड पार होता है और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगता है। तो दैट वी शुड नेवर लूज होप, और हमेशा इसकी तरफ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सबका होना चाहिए। अभी कोरोना के समय मैं एक दो मैं क्वेश्चंस देख रहा था साइड में, एक्चुअली मेरे भी ये में आ रहा है। कुछ लोगों ने पूछा है कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रहे हैं, उसमें जो समस्या हो रही है उसके बारे में। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम करके एक बीमारी का नाम ही दे दिया गया है कि बहुत ज्यादा जो लोग स्क्रीन पे देखते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, जिनका बहुत ज्यादा समय उस पर जाता है, उन लोगों को ये समस्या होती है कि उनके आंख में कभी कभी दर्द होता है, आंख में स्ट्रेन होता है, पानी गिरता है, इस तरह की चीजें होती हैं कई बार। उसका उपाय यह है कि एक सिंपल फॉर्मूला है 20-20-20। अगर आप 20 मिनट तक कंप्यूटर पे या लैपटॉप या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो 20 सेकंड के लिए आपको ब्रेक लेना है। और उस 20 सेकंड का जो ब्रेक आप ले रहे हैं, उसमें आपको दूर की चीजों को देखना है, कम से कम 20 फीट की दूरी पर। खिड़की से बाहर देखिए, कमरे के दूसरे कोने में देखिए, स्क्रीन पर से नजर हटा लीजिए। फिर ऐसा नहीं कि स्क्रीन से नजर हटाए, लैपटॉप से हटा और मोबाइल देखने लगे, तब नहीं होगा, या बुक पढ़ने लगे, तब नहीं होगा। उसको आपको दूर देखना है। दूर देखने पे तब आंख की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, 20 सेकंड तक वो रिलैक्स होंगी। तो यही है 20-20-20। 20 मिनट तक का आपका अगर स्क्रीन का काम है, 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, और 20 फीट की दूरी या बिल्कुल इन्फिनिटी में आप खिड़की से बाहर दूर देखिए। तो वैसे में स्ट्रेन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और कंप्यूटर का लेवल जो है वो आई के लेवल से 10 से 15 डिग्री अगर आप नीचे रखें, तो पॉस्चर सही होना चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह की काफी समस्या से बचा जा सकता है। और कभी कभी इसकी वजह से ड्राइनेस होने लगता है, तो उसके लिए अपने आई स्पेशलिस्ट से मिल करके आपको कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप यूज करें। तो इस तरह के चीज से, जैसे बच्चों को आजकल उनकी मजबूरी है कि क्या करें, उनका लॉकडाउन में क्लास चला, जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनकी मजबूरी है कि 8 घंटा 10 घंटा उनको कंप्यूटर पे रहना ही है। और अब तो टीचर की भी मजबूरी हो गई है। सबकी मजबूरी है। अभी तो जो समय है उसमें तो ये पार्ट एंड पार्सल है, इससे हम दूर नहीं जा सकते। ये अब हिस्सा हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो ये सावधानी बरतनी है, थोड़ी बहुत सावधानी बरतने से ही अब लंबे समय तक होने वाले any diet plan or anything dietary things you want to suggest? देखिए, डाइटरी थिंग में सच ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विटामिन ए वगैरह हम लोग लेते हैं, लेकिन वो अगर शरीर में कमी है तभी वो लेने का लाभ है। हम विटामिन ए ज्यादा ले लें तो ऐसा नहीं कि बॉडी में स्टोर होके रहेगा, वो निकल जाएगा। तो गाजर खाना और बाकी सारी चीजें हैं, वो सब हेल्दी है, आप नॉर्मल खाएं और नॉर्मल हेल्दी डाइट लें। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके डाइट हैबिट्स सही हैं तो फिर ऊपर से सप्लीमेंट कुछ लेने की जरूरत नहीं है। Great. I would like to announce about the next Mashwara episode. We are coming on again on Saturday, July 10th at 3 p.m. with an important subject on trends of counseling in mental health and rehabilitation science services. After receiving lots of your interest and questions regarding this issue, we have kept this episode, and hopefully we will be meeting on 10th July at 3 p.m. with our experts. और हम शनिवार 10 जुलाई दोपहर 3 बजे फिर से एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आ रहे हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवा के परामर्श के बारे में
उसकी सहज प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं। हम अगले अंक में जरूर 10 जुलाई को 3 बजे फिर से मिलते हैं हम अपने विशेषज्ञ के साथ। और अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मिस्टर जेसी गुप्ता सर, you give your final remarks and then we will go for the end of the session. Dr. JC Gupta sir, unmute your mic. Yeah. सर जी सर, अभी जो ये बात हो रही थी ना कि जब हम बच्चों को क्लिनिक में लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ऑड फील करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ ये है हम बच्चे को पनिश कर देते हैं, थप्पड़ मार दिया, क्यों मारा ये नहीं बताते। तो ऐसे ही बच्चे को डॉक्टर को लेके दिखाना है, उसको नए नए कपड़े पहनाते हैं, उठा करके ले जाते हैं, डॉक्टर के सामने जाके बिठा देते हैं, एंड द चाइल्ड इज एस्टोनिश्ड। वो एकदम आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है। तो अगर हम पेरेंट्स उस बच्चे को ओरिएंट कर लें, उसको समझाएं, भाई यू हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आपको ये समस्या है, हम आपकी इस समस्या के लिए वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको ये आदमी मिलेगा, ऐसा एनवायरनमेंट होगा। तो उस एनवायरनमेंट से वो अगर हम उसको ओरिएंट कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदामंद हो जाएगा, नंबर एक। और जो एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त आजकल के दिनों में आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरत है कि हम लाइन ड्राइंग कराते हैं, डॉट्स को मिलवाते हैं। बच्चा डॉट्स को स्ट्रेट नहीं मिला पाता है, या डॉट्स के ऊपर रह जाता है या नीचे रह जाता है, तो वो एक काम वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ही हैज गॉट ए प्रॉब्लम इन विजन। दूसरा जो है बैंगिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स। घर में वो चलते फिरते जो है अलग अलग चीज़ों से टकराता रहता है। सामने कोई खंबा रखा हुआ है, या बाल्टी है, या मेज है, या टेबल है, कुर्सी है, उनसे वो टकराता रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ही हैज गॉट ए प्रॉब्लम इन विजन, एंड पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ दिस। ये कंसर्न है। दो चीजें बहुत छोटी छोटी मैंने बताई हैं कि एक तो वो चीजों में बैंक करता है, देन उसको चीज उठाने के लिए कहते हैं चीज इधर रखी है, वो दूसरी जगह हाथ लगाता रहता है। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको हम ध्यान में रख करके पेरेंट्स जो है वो घर में ये पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे में कोई विजन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। या प्लीज सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। ये बहुत ज़रूरी है आईडीडी के बच्चों के साथ कि उनको कुछ समस्या है, ये इसका आभास उनको अगर हम कम से कम कराएं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। या वेरी गुड सर, वेरी गुड। उनको कभी इंफीरियोरिटी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं आने देनी चाहिए उनके अंदर कि वो कहीं से कम है। तो कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, ये बताने की बजाय अगर हम उनको ये कह सकें कि आपका इसमें और बेटर हो सकता है, ये चीज और आपकी अच्छी हो सकती है, या आपकी कम है, ये कहने की बजाय आपको ये प्रॉब्लम है, इसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये बताने की बजाय कि ये आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत देगा। और अगर वो घर में ही ऐसा सुनता रहेगा कि उसके साथ समस्या है, तो वो खुद को बहुत ही एक हीन भावना से उसमें वो आ जाएगी और वो डिप्रेशन का शिकार होने की चांसेस काफी बढ़ जाएगी। ग्रेट सर, एक सवाल फिर से वही है, हमारे एक जो पार्टिसिपेंट हैं, दे हैव रिटन कि प्लीज दोबारा हमें 20-20-20 का फॉर्मूला बताइए। या वो बहुत ही आसान है। 20 मिनट तक कंप्यूटर पे अगर आप देख रहे हैं लगातार, तो 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में आपको 20 फीट की दूरी की चीजों को देखना है, 20 फीट या उससे भी दूर। ठीक है, तो ये 20 मिनट्स का स्क्रीन व्यूइंग, 20 सेकंड्स का ब्रेक, और कम से कम मतलब 20 फीट एक बनाया हुआ है कि 20 फीट या उससे दूर आप खिड़की से बाहर देखें, 20 सेकंड तक आपकी आंख को उससे आंख की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ग्रेट। सो हम बहुत सारे चीज हम लोगों ने सीखा है, 2020 के साथ भी बहुत सारा चीज सीखा है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑल द ऑडियंस एंड एवरीवन, if you have any questions or suggestions, you please keep on writing us on email, mashwara, mashwara @manovikas.family, or you can fill the feedback form, you write your questions or whatever suggestions in the feedback form, we will take it from there also. मशवरा आपको कैसा लगता है हमें जरूर ईमेल करिए, और हमें आप ईमेल के थ्रू प्रश्न लिख सकते हैं। आप अपने सत्र के अंत में जो फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी आप अपना सारा सब चीज डाल सकते हैं। सो नाउ आई थैंक यू ऑल। I deem it is a great honor to host this 22nd episode of Mashwara.
I thank you all who have helped us in making all episodes 20 such a second grand. Thank you very 22, much. And 22, and I once again 22. thank Yeah. So the organizers for giving me this thank you, sir. Thank opportunity. you. It's my privilege, and I'm sure I was able to Yes, give we some will of your be in touch answers. with you, sir. We will in touch with you. And first of all, I would like to propose my heartily thanks to our special expert, Dr. Vibhuti Bhusanji, for gracing today's Mashwara. So thank you all. Thank you for very informative sessions, very informative address, and very informative tips you have provided. And I can tell you very frankly, sir, the doctor who comes in our Mashwara, other than those who has not in our sector or in our field, they are very much hesitant to talk about the intellectual and developmental disability. But today I have observed, and this is my compliments to you, and you are very much close to our person with intellectual and developmental disabilities. You have the great information, great knowledge about it. So you are we compliment you very much, sir. And thank you again for opening our minds and opening many doors. 20 feet 20 feet 20 feet ka doors aapne open kar diya. So that is great, sir. And we really give a big round of applause to our expert. And I would like to express our profound gratitude to our JC Gupta sir for gracing the occasion, and our other members, those who were present here, volunteers and staff members of Manovikas. I'm happy to express my thanks to all staff members who have made this episode very successful. Especially today also, we are giving the special thanks to Adya for volunteering us and sending the messages to all the participants. Raki, thank you for sign language interpretation. Suraj, he's working on Facebook Live. So thank you. Susil, you are controlling the Zoom. Indra Madam, DJ and Ruby, Sangeeta, everyone. Thank you. Thank you very much. Finally, the wonderful guest and participant who have turned up in such a great numbers of Mashwara, and they are not only from the disability sector, they are from the other sector also. So thank you very much for your active participation.